their lines. A very good question, ma'am. Just to add to that, I just feel that we have been discussing within ourselves, within as producers, as actors, as directors, um, social media right now and the relation that films and social media. I'm just talking about this relation. Um, it's just it's just starting. It's gonna there's gonna be a big bang, and it's just gonna become even bigger. And this connection is going to be bigger than what we do with television or theatricals, like Pulkit said, rightly said. Um, we in coming years, you will see that the ad spend on television coming down, and there'll be more innovative ways to attract attention um, on social media, and that's what the new market is going to be, and hopefully there will be a space where you'll have content coming directly on social media. There would be a film that is released in theater and on social media at the same time. I mean, social media in terms of via social media, on portals and whatever. And there'll be a huge boom in this that we all foresee. Ritesh and Pulkit, hi. Yeah. Hello. 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 Hi. So, since you two are playing terrorists in the film, and you guys are seen making bombs and explosives in the trailer and promos, so how was the whole experience? And also, did you now get a vague know-how of how to make a bomb? या हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए अभी ये हम लोगों ने बनाया No, no. But how was the whole experience, like making the stuff? How was it? You know, the last time I blew a bomb was during Diwali. I'll tell you my experience. No, it's a very unique experience. I'll say in Hindi because there are certain cameras here. मेरे गांव में आंगन पर हम लोग जो उसकी फर्श है वो गोबर से बनाते हैं और रोज़ सुबह उसको गोबर और गौमूत्र से उसका in Marathi it's called सारवणे. I don't know, and a lot of Maharashtrians will know here. और दिवाली के वक्त they used to make these gods out of गोबर and big ones. पूजा करके पुजारी चले जाता था, फिर दोपहर के हम आके उसमें बॉम्ब्स लगाकर we used to blast them all over the ceiling. और ये कोशिश होती थी कि ये ऊपर टच होगा कि नहीं. So that was the last bomb blast I was involved in. How, ma'am, please. Wow. मैम ऐसा मत किसी ने तो बोलिए देखा. ऐसी धारणाएं बन जाएगी मीडिया में मैं प्यार करता हूँ इससे मेरा बड़ा भाई है पुलकित प्यारा भाई है you said, ना? प्यारा बड़ा भाई No, he's been a great support all through the film. मैं एक्चुअली पहले भी बोल चुका हूँ जब मुझे इनसे पहली बार मिलना था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था कि मैं सबसे पहले इनकी कॉमिक टाइमिंग जो है कमाल की है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है तो मैं इनसे मिलूँगा इनसे बात करूँगा हाउ डू आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम ही इज़ अ सीनियर तो मैं पहले एक्चुअली मिला नहीं था हम लोग आई थिंक यू वर शूटिंग फॉर लाइव भारी इन हैदराबाद व्हेन वी जस्ट मेट फॉर वी जस्ट सेड हाई as in I just said hi and he kind of ignored. I shot with Salman Khan there. Yeah, He but was you ignored happy to see me, and you have behaved like, hi. I was like, fine. मैं इनसे काम चला लूँगा. I'll see you later. तो हाँ मेरी खिंचाई इन्होंने तब से स्टार्ट कर दी थी बट मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे इस फिल्म में एंड मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम एट सच एन अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर स्पेशली इन अ फिल्म लाइक बैंगिस्तान विच इज़ अ सटारिकल और यू नो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अप्रोच दैट ही हैज़ टुवर्ड्स हिज वर्क एंड मैंने उसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर ली और कितने सारे सीन्स ऐसे होते थे जिसमें ये मुझे बोलते थे अरे तू ऐसा कुछ ट्राई करके देख अभी तेरा कैरेक्टर ऐसा है ना अब तू ये ट्राई करके देख और वो हर बार अच्छा ही निकलता था एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से कि जो मैंने सजेस्ट किया बहुत अच्छा है आई डोंट नो व्हाट ही थॉट अबाउट इट बट वही सब कट किया ना बाद में वी विल फाइंड आउट बट ही इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट आई थिंक अ रिलेशन एंड अ बॉन्ड गोज बियॉन्ड द सेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड एन एल्डर ब्रदर इन हिम Hello. Hi, Ritesh. Hello. Ritesh, Jacqueline is there in this movie. जी. तो जब आपने उनके साथ पहले 2 मूवीज करी थी जी.
और अब आप कर रहे हो तो वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं और जी। मैच्योर हो चुकी जी। हैं। तो क्या लगता है उनके बिहेवियर में और उनके चेंजेस कितने आए उनमें? जैसे आपने कहा कि उनकी पहली 2 फिल्में मेरे साथ थी, अलादीन और जाने कहाँ से आई है। जब उन्होंने तीसरी बार फिल्म में गाना किया था, वो था हाउसफुल के लिए, उसमें भी वो गाने में मैं था। देन शी वेंट ऑन टू डू मैनी सक्सेसफुल फिल्म्स, चाहे वो मर्डर 2 हो, फिर हम लोगों ने फिर से काम किया हाउसफुल 2 में, देन रेस टू केक। क्या है, one thing that has not changed throughout is her intention to work harder every time. और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। और दूसरी बात तो जब भी सेट पे आती है, या आई एम श्योर आप सभी ने उनके साथ इंटरव्यू भी किया होगा, शी इज़ लाइक अ लाइव वायर। देयर सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शी हैज़, दैट शी ब्रिंग्स ऑन सेट और वेर एवर शी इज़, एंड दैट हैज़ नॉट चेंज्ड. But what has changed is the fact that she's become an even better performer, even more confident dancer. आज आप उनके performances देखो गानों में, तो you know that there is certain amount level of perfection that she's attained, and that's only through her hard work. And really hats off to her, and I wish her all the best. And I'm really happy for her that she's doing so well. जी. जी. In a negative role? No, I think yes, absolute. I mean, एक विलन, टाइटली एक विलन था और एब्सोल्यूट नेगेटिव रोल था ही वो. आई रिमेंबर एक हम लोग टीवी देख रहे थे जिनिल में उस, एंड शी सेड दैट आई थिंक यू शुड प्ले अ डार्क कैरेक्टर, इट विल रियली सूट यू. आई डोंट नो व्हाई शी सेड दैट. और जब मुझे स्क्रिप्ट नरेट की गई, 2 हफ्ते बाद एकता का फ़ोन आया कि आई हैव एन अमेजिंग स्टोरी एंड आई विश यू से येस टू द फिल्म, सो एंड यू आर द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म. तब मुझे पता नहीं था कि मोहित डायरेक्टर हैं. उसके बाद मोहित और एकता के साथ मुलाकात हुई, ये फिल्म नरेट की गई, और मैंने घर आके बोला कि यू जस्ट आस्क्ड फॉर इट एंड आई एम जस्ट बीन ऑफर्ड अ नेगेटिव रोल. जिस रोल क्या है? तो मैंने कहा कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से प्यार करता है, लेकिन उसे मारना चाहता है, और उस वजह से ही गोज़ एंड किल्स अदर विमेन, बट हिज एंटायर इंटेंशन इज द डिलेमा के इससे प्यार करूँ कि इसके मार डालूँ. तो शी सेड यू विल बी एबल टू प्ले दिस परफेक्टली. I didn't understand what she meant by that. But yes, Janina really tries to push me in any way to better myself as a performer, as an actor. Or if I ever get a chance again to do something drastically different, I would love to do it. And as an actor, I think even Pulkit तो कोई भी एक्टर हो, उसे अगर कुछ ऐसा रोल मिले जिससे कुछ अलग करने का मौका मिलता है, तो इट्स, एंड इसीलिए मैंने बैंगिस्तान की, बिकॉज इन ह्यूमर देयर वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी टू डू दिस टाइम. I would love to. I would love to because, as he said, I think creatively you have to keep trying different things. और जब मैं कोई भी फिल्म चूज़ करता हूँ, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ ऑलवेज कि क्या इस कैरेक्टर में मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगा कि जो लिखा हुआ है और जो डायरेक्टर ने सोचा हुआ है उससे थोड़ा मैं इसमें कुछ बेटर कर पाऊँगा. और जब मैं सेट पर परफॉर्म करूँ तो घर जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए आज कुछ काम ही नहीं किया है, लगना चाहिए आज मेहनत करके आए हों और अच्छी नींद आए. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कीप ट्राइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. It keeps your creative buds always alive. Thank you, guys. We'll stand for the photo ops. Thank you, Sunaini. Thank you so much for coming and spending a lovely afternoon with us. Thank you so much. Thank you so much.
For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.